Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Haknawaz from FP Public School AMF Kamra. Welcome you all. And today I am delivering the lecture of Mathematics class 9. The topic of my lecture is types of matrices. For the updates of coming lectures, please subscribe the channel and click on the like button and bell icon. The objective of my today's topic is to enable the students to grasp the concepts of types of matrices. We have already discussed some types of matrices in the previous lecture, so the remaining all types of matrices are as under transpose of matrix, negative of matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, diagonal matrix, scalar matrix and identity matrix. The first type of matrix which we are going to discuss in this slide is transpose of a matrix. A matrix obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. We can define transpose of a matrix in another way, that interchanging of rows and columns of a matrix in such a way that the first row becomes first column, second row becomes second column, or first column becomes first row, second column becomes second row. If we are given a matrix A, then its transpose is denoted by AT. Now I am going to explain the transpose of matrix by using example. In the first example, we are given a matrix A. First row of matrix A 1 2 3, second row 4 5 6 and third row of matrix A consists of the entries 7 8 and 9. इसके सामने हमने ट्रांसपोज ऑफ ए भी फाइंड किया है, और मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में क्या डिफरेंस है? अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. तो मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो अगर चेक करें तो 1 2 3 है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर चेक करें तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई है. इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई. इन द सेकंड एग्जांपल, first row consists of the entries A, B, C. In the transpose of matrix B, first row become first column and similarly second row become second column. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में है, याद रखना चाहिए कि अगर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 8, उसका ऑर्डर है 3/3, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर 3/3 होगा. लेकिन जब हम सेकेंड एग्जांपल बी मैट्रिक्स में चेक करते हैं तो मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 2/3 है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर बन गए 3/2. इट मीन्स कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है ऑर्डर 2/3 का, तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर 3/2 हो जाएगा. और अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर 1/3 है, तो जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अच्छा, अब है जी नेगेटिव मैट्रिक्स. द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स इज, सपोज A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of matrix A. In a simple words, अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज़ हैं उनके साइंस हम चेंज कर देंगे
from plus to minus and minus to plus. I can explain negative of matrix by using the example. We are given a matrix A. There are 4 entries. The matrix A having the order of 2 by 2, 1, 3, minus 2, 4. 1, 3, 4, these 3 entries are positive, and the 1 entry 2 that is negative. हमें जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना होगा माइनस ए, तो उसमें एंट्रीज के सारे साइन हम चेंज कर देंगे. मैट्रिक्स ए में 1 के साथ कोई साइन नहीं है, डेट मीन का अंडरस्टूड वो पॉजिटिव है, तो 1 -1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा. और मैट्रिक्स ए में हमें -2 दिए हुए, इसका साइन चूँकि हमने चेंज करना है, प्लस करना है, तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. किसी नंबर के साथ अगर कोई साइन ना हो तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो पॉजिटिव नंबर है. तो -2 को हम 2 लिख देंगे और 4 को -4 लिख देंगे. जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा जो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स -a विल बी इक्वल टू -1, -3, 2 एंड -4. Symmetric matrix. A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. Matrix A is symmetric if the transpose of matrix A is equal to A. In simple words, स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे एक टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमेट्रिकनेस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की चेक करने के लिए हमें पहले उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. इससे पिछली स्लाइड में ट्रांसपोज हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो मैट्रिक्स ए के इक्वल ही आता है, तो हम उस मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. नाउ आई एक्सप्लेन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल. एक मैट्रिक्स ए गिवन है मुझे. फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं 1, 2, 3. सेकंड कॉलम की एंट्रीज हैं 2, -1 एंड 4. और थर्ड कॉलम की एंट्रीज हैं 3, 4 एंड 0. आप पहले ये चेक करना है आपने कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3. तो सिमेट्रिकनेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की चेक की जाती है, या तो वो 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो. 4/4 चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने 3/3 का मैट्रिक्स लिया है, साथ ही उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है. फर्स्ट रो 1, 2, 3 जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है 1, 2, 3. सेकंड रो 2, -1, 4 becomes second column 2, -1 and 4. और सिमिलरली थर्ड रो 3, 4, 0 becomes थर्ड कॉलम. अब हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की एंट्रीज में कोई डिफरेंस आया है या वही है, सेम है. तो जब हमने ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड किया है तो मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be skew symmetric if the transpose of matrix A is equal to negative of matrix A. मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर हम मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स I. In this slide, I am going to explain the skew symmetric matrix by using an example. We are given a matrix E having the order of 3/3.
means is a square matrix. First row 0 to 3, the entries of second row are -2, 0, 1, and the entries of third row are -3, -1 and 0. हमने जब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गए, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गए और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गए। हमने जब चेक किया कि मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस आया है, अगर दोनों सेम होते तो हम इनको कहते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, डिस्मेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन ये सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ऑफ ए में क्या डिफरेंस है चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 0 सेम है। सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए में 2 है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में -2 है, मीन्स के साइन चेंज हो गया है। थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए में 3 है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में -3 है, साइन चेंज होके आ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। सेकंड रो को अगर चेक करें तो मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो है वो -2 है, जबकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में वो -2 2 बन गए, यानी साइन चेंज हो गए। ज़ीरो ज़ीरो ही है, ज़ीरो का साइन चेंज हो प्लस माइनस हो, ज़ीरो ने ज़ीरो ही रहना है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो मैट्रिक्स ए में 1 है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में -1 है, यहाँ भी साइन चेंज हुए। लास्ट रो थर्ड रो चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो मैट्रिक्स ए में -3 है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में है +3, साइन चेंज हो गया है। सेकेंड एलिमेंट ऑफ थर्ड रो इन मैट्रिक्स ए इज़ -1, और जब हम आके ट्रांसपोज ऑफ ए में चेक करते हैं तो उसका साइन चेंज हुए +1 हो गया है। लास्ट वाला 0 है। इसका मतलब है कि जब हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया तो वो इक्वल टू आ गया -a। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, मीन्स कि अगर मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज लिया है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -a है, then we can say that the matrix A is a skew symmetric matrix. The next type of matrices is diagonal matrix. Diagonal matrix also belong to the family of square matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. According to the definition of diagonal matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं एटलीस्ट मीन कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके एक्सप्लेन करेंगे कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। इन दिस स्लाइड वी आर गिवन 4 मैट्रिसेस A, B, C and D. All these 4 matrices are diagonal matrices. Now we see that why they are called diagonal matrices. Before explaining the diagonal matrices, first I want to clear the concept of diagonal and non-diagonal entries. The entries which are shown in red color are to be known as diagonal entries. Other than these red color entries are said to be non-diagonal entries which are shown in black color. कि इसमें डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री ऑफ रो 1, सेकंड एंट्री ऑफ रो 2 एंड थर्ड एंट्री ऑफ रो 3. These 3 entries
are known to be diagonal entries. Other than these entries are called the non-diagonal entries. According to the definition of diagonal matrices, all the entries are zero except the entries in the diagonal. यानी डायगनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, उसके अलावा सारी एंट्रीज जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स ए में देखते हैं 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्रीज़ हैं 1 2 3 इनको डायगनल एंट्रीज़ कहते हैं। तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो हैं, इसके अलावा नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स पी। इसमें भी जो डायगनल एंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए यहाँ पे। तो कम से कम एक नहीं, दो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इसके अलावा सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो मैट्रिक्स पी भी डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स सी और डी दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स सी में जो डायगनल एंट्रीज़ हैं 1 2, इसके अलावा नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो मैट्रिक्स सी भी डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स डी की तरफ आते हैं, तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो डायगनल एंट्रीज़ हैं एक ज़ीरो है एक 3 है। ये क्योंकि डेफिनेशन में बताया गया कि कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सारी भी हो सकती हैं, तो कम से कम एक तो वो 3 हमारे पास है डायगनल एंट्रीज़ में, इसके अलावा सारी ज़ीरोज़ हैं। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स डी भी जो होगा वो डायगनल मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगनल मैट्रिक्स होता है। द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। हर वो डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी डायगनल में जो एंट्रीज़ हैं वो सारी सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। In the matrix A, all the non-diagonal entries are zero except the diagonal entries, and the diagonal entries are k, k and k. सेम एंट्रीज हैं और ये k कांस्टेंट है, और k कांस्टेंट की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 के अलावा जो वैल्यूज़ होंगी k की वो अगर इधर पुट करें तो A मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आते हैं मैट्रिक्स पी की तरफ। ऑल द नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगनल एंट्रीज एंड द डायगनल एंट्रीज आर कांस्टेंट। ऑल 3 एंट्रीज आर सेम, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ए और बी दोनों 3x3 के मैट्रिक्स थे। अब हम एक्सप्लेन करते हैं स्केलर मैट्रिक्स को 2x2 मैट्रिक्स से। तो 2x2 का मैट्रिक्स हमें सी गिवन है, इसमें जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो दोनों सेम हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। सिमिलरली इन मैट्रिक्स टी ऑल दी डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। सो मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी all 4 matrices are scalar matrices. A diagonal matrix is called identity or unit matrix. If all diagonal entries are 1, it is denoted by capital I. We are given 2 identity matrices having the order of 2x2 and 3x3. अब ये एक ही फैमिली है। स्केलर मैट्रिक्स की आगे टाइप्स हैं डायगनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी तीनों जो मैट्रिसेस हैं ये डायगनल मैट्रिक्स हैं। इनको डायगनल मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि नॉन डायगनल आइडेंटिटीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं। ऑल नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो एंड डायगनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फ़र्क कहाँ से पड़ता है? अगर डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और डिफरेंट हों तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगनल। अगर डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और
सेम हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स उस वक्त आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है जब इसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 हो। In this slide, family of square matrix is explained. Symmetric matrix, skew symmetric matrix, diagonal matrix, scalar matrix and identity matrix. All these matrices belong to the family of square matrix. I hope that you will get the clear concepts about the type of matrices. I will join you in next lecture. Till then, thanks and Allah Hafiz.